Hello students, today's my topic is leadership style. So leadership, it is the art of motivating a group of people to act towards achieving a common goal. Means a leader which will be motivate to another group which will be act towards achieving a common goal. Means it is a process of encouraging and helping others to work enthusiastically towards the objectives. Means one leader which will be motivate to a group of group members, and they will be, or the leader which will be encourage or help to others. Why they will encourage the people to doing the work together, and they will gain a objective, or they will perform the objective formally. Then the essence of leadership refers to ability of one individual to influence others. Means the leadership in this, it will be refers to ability of one individual to influence other. Means एक लीडर में एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए दैट because of that ability the another individual which will be influenced by their quality or characteristic. The influence exercise to change the behavior of others. Means ऐसा the leader which will be showing their influence to another person, so that the changes of behavior to others, मतलब वो दूसरे के बिहेवियर में चेंजेस लाना चाहिए. देन चेंज ऑफ बिहेवियर इज कॉज्ड विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग अ shared goal. Means the change of behavior which will be caused with an objective. Means that member or that person which will be achieving a shared goal. Then the person influencing other, means which person, that leader which will be possesses a set of qualities or characteristic with which he or she to influence other. मतलब एक लीडर में एक सेट ऑफ क्वालिटीज होनी चाहिए और कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए जिसको देख करके कोई भी पर्सन, कोई भी ही और शी विच विल बी इन्फ्लुएंस, मतलब सामने वाला जो पर्सन है वो उसकी क्वालिटी से, उसके कैरेक्टरिस्टिक से वो इन्फ्लुएंस होना चाहिए. देन लीडरशिप, इट इज़ अ ग्रुप फिनोमिना. मीन्स इट इज़ ये एक ग्रुप फिनोमिना है. इट involves interaction. Means in this leadership, the leader which will be involved between two people or many people. So then next is leadership and management. मैनेजमेंट दैट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. मीन्स ये एक प्रोसेस है प्लानिंग, जिसमें एक मैनेजमेंट जो होता है वो प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइज करता है, कोऑर्डिनेट करता है, डायरेक्ट करता है एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ अदर्स. मीन्स ये एक प्रोसेस है. बट द लीडरशिप, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग. लीडरशिप जो होता है इसमें जो लीडर होता है, इट विल बी इन्फ्लुएंस फॉर द पर्पस ऑफ सम shared goal which will be having that leader, and the leader which will be influence the group member to achieving the shared goal. Then according to John Porter, the distinction between management or leadership, so in management involve coping with complexity. Means जो coping mechanism है इसमें complexity होती है, but coping with change. leadership में हम क्या देखते हैं कि हम इसमें चेंजेस लाते हैं. देन व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ मैनेजर्स एंड लीडर्स. सो मैनेजर जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं. देन लीडर्स जो होते हैं उनका जो वर्क होता है वो इनोवेटिव होता है. देन मैनेजर विच विल बी मेंटेन, the manager, they will be maintaining their work, but the leader which will be developing their work, or they will be developing their goals. Then manager which will be control, मैनेजर जो है किसी चीज को कंट्रोल करता है, बट लीडर विच विल बी इंस्पायर, वो क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं, इंस्पायर करते हैं. देन मैनेजर के जो गोल्स होते हैं इट विल बी शॉर्ट टर्म व्यू होता है, लेकिन लीडर जो होते हैं वो फ्यूचर देखते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू होता है उनका. देन मैनेजर्स विच विल बी आस्क हाउ एंड व्हेन, बट द लीडर्स विच विल बी आस्क व्हाट एंड व्हाई. मतलब जो मैनेजर्स होते हैं हाउ, कैसे होगा, कब तक होगा, ये वो पूछते हैं, बट जो लीडर्स होते हैं दे आस्क व्हाट एंड व्हाई, क्या और कैसे, ये वो उनका क्वेश्चन होता है. देन मैनेजर जो होते हैं इनिशिएट करते हैं, but leaders which will be originate. Then managers which will be accept the status quo, but the leader which will be challenge the status quo. Then what are the importance of leadership? Leadership transforms potential into
रियलिटी। लीडरशिप जो है वो क्या को ट्रांसफॉर्म करता है, पोटेंशियल से रियलिटी को ये ट्रांसफॉर्म करता है। मतलब एक लीडर में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो ट्रांसफॉर्म करे पोटेंशियल से रियलिटी को। देन लीडरशिप इज नॉट मेयर यूजिंग पीपल एंड देयर पोटेंशियल फॉर रियलाइजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन goal. It has the ultimate aim of rising the level of human conduct and ethical aspiration of both the leader and lead. Means leadership जो है it is not mere using people and their potential for realizing an organizational goal. मतलब वो organizational goals के लिए नहीं होते, but ये क्या करते हैं मतलब हम एक लीडर के अंदर क्या होना चाहिए, इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इट हैज़ अल्टीमेट एम ऑफ राइजिंग द लेवल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। मतलब एक एम होना चाहिए जो ह्यूमन कंडक्ट के लेवल को क्या करे, raise कर सके, and the ethical aspiration of both the leader and the led. Then the types of leadership, that will be formal and informal leadership. So the first is the formal leadership. It occurs when a manager leads by exercising formal authority. जब कोई मैनेजर जो है which will be leads by exercising formal authority के अंडर में जब वो काम करता है, it comes under formal leadership. The exercise of formal authority through assigning duties derives from the manager's official position within the organizational hierarchy of authority. Means, according to formal authority, any assigning duties which will be derived from the manager's official position. So, it will be within the organizational hierarchy of authority के according जब उसको कोई काम दिया जाता है, कोई ऑफिशियल पोजीशन दिया जाता है, it comes under the formal leadership. Any employee who is assigned a managerial position, किसी employee को, वो एक employee है, but when the management which will be seeing that the person which will be having the proper qualities or characteristic of leadership, so in that time if they will assign a managerial position, has the opportunity and the responsibility to exercise formal leadership, so it comes under the formal leadership. Informal leadership means it is the ability of person to influence the behavior of other. मतलब ये इसमें जो पर्सन होते हैं उनके अंदर एक एबिलिटी होना चाहिए कि वो दूसरों के मतलब इनके बिहेवियर को देख करके जो दूसरे पर्सन है वो क्या हो सके, इन्फ्लुएंस हो सके। देन फॉर्मल अथॉरिटी कन्फर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इट्स रूल एंड प्रोसीजर एंड इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन फॉर्मल। ये बेस्ड मतलब ये अथॉरिटी के बेस्ड पे नहीं होता है। किसी सोसाइटी में अगर हम किसी पर्सन का के बिहेवियर को देख करके इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या उसकी क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक को देख करके हम इन्फ्लुएंस होते हैं और उसको हम लीडर बना देते हैं, सो इट कम्स अंडर द इनफॉर्मल लीडरशिप and it is not based upon the authority. Then leadership style, so it is based on authority retained, based on task versus people emphasis, based on assumption about people, Likert score style or entrepreneurship leadership style. So based on authority retained, so in authority retained, now there will be three types. The first is the authoritarian, democratic or free reign leisure. So in authoritarian means क्या होता है, एंड अथॉरिटेरियन मीन्स लाइक हिटलर टाइप लीडर मीन्स वो किसी की नहीं सुनता है, वो सिर्फ अपने कमांड्स देता है और उनके जो अंडर जो पीपल है उनको उसको फॉलो करना है। डेमोक्रेटिक मीन्स इंडिया इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। मतलब इसमें जो लीडर होगा वो जो उसके अंदर जो मेंबर्स हैं उसको वो जो बोलना चाहता है उसको वो सुनता है। देन फ्री रेन लेजर मीन्स द लीडर विच विल बी free for their subordinates. Then democratic, it will be again divided in two types, that is consultative or persuasive. So autocratic or authoritarian style में under the autocratic leadership style all decision making or powers are centralized in the leader. मतलब डिक्टेटर लीडर्स, मतलब इसमें जो लीडर होते हैं उनका जो भी डिसीजन जो होगा वो उस लीडर का ही होगा। वो किसी भी मतलब जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके सजेशन को वो एंटर नहीं करता, वो नहीं सुनता है। वो जो जो उसने जो डिसीजन लिया है वो उसी को ही वो फॉलो करेगा। उसको कोई मतलब नहीं है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। देन ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट हैज बीन सक्सेसफुल एज इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू द मैनेजर एंड इट परमिट्स क्विक डिसीजन मेकिंग। ये क्या इसमें क्या होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। क्यों क्विक डिसीजन मेकिंग होता है? क्योंकि एक पर्सन ही डिसाइड करता है कि क्या करना है, वो किसी और पर्सन का जो भी डिसीजन है उसको सुनता नहीं है। तो जब वो सुनेगा नहीं तो उसको कुछ सोचना ही नहीं है, उसको अपना ही डिसीजन को
दूसरों के ऊपर डालना है, तो इसलिए इसमें जो डिसीजन मेकिंग होता है वो क्विक होता है। देन हाई डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी ऑन द लीडर, मतलब जो भी ग्रुप मेंबर होंगे उनका जो डिपेंडेंसी है अपने लीडर के ऊपर वो हाई डिग्री होता है, क्योंकि वो अपने लीडर के ऊपर फुली क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। देन पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक स्टाइल, डेमोक्रेटिक लीडरशिप फेवर डिसीजन मेकिंग बाय द ग्रुप, मतलब इसमें जो लीडर है वो अपने जो ग्रुप मेंबर हैं उनकी भी सुनता है, उनके साथ कोऑपरेट करता है एंड मोटिवेट देम इफेक्टिवली, और उनको मोटिवेट करता है इफेक्टिवली और पॉजिटिवली। द डिसीजंस ऑफ द डेमोक्रेटिक लीडर आर नॉट यूनिलेटरल, इसमें यूनिलेटरल नहीं होता, मतलब वो लीडर ही डिसीजन लेगा ऐसा जरूरी नहीं, मतलब ये ऑटोक्रेट के समान नहीं होता है। बिकॉज दे अराइज फ्रॉम कंसल्टेशन, इसमें कंसल्टेशन होता है एंड विद द ग्रुप मेंबर एंड पार्टिसिपेशन बाय देम, मतलब वो इसमें जो लीडर्स होते हैं अपने ग्रुप मेंबर के साथ कंसल्ट भी करते हैं और उनको पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो कंसल्टेटिव मीन्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन बिफोर डिसीजन आर टेकन, मतलब डिसीजन लेने के पहले लीडर जो होता है वो क्या करता है, अपने जो ग्रुप मेंबर्स हैं या जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके साथ में वो कंसल्ट करता है कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो फेयर है नहीं है या उसमें कुछ चेंजेस लाना है। देन परसुएसिव मीन्स लीडर टेकन डिसीजन एंड सिक्स टू परसुएड अदर दैट द डिसीजन इज करेक्ट, मतलब लीडर डिसीजन लेगा और बाकी लोगों से पूछता है कि जो डिसीजन वो ले रहा है वो करेक्ट है कि नहीं है। देन लेशर फेयर और फ्री रेन स्टाइल, सो इसमें फ्री रेन लीडर डज नॉट लीड, इसमें जो लीडर होता है वो लीड नहीं करता है लेकिन वो क्या कर देता है, बट लीव्स द ग्रुप एंटायरली टू इटसेल्फ, मतलब वो सब अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको छोड़ देता है कि वो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। सच अ लीडर अलाउ मैक्सिमम फ्रीडम, मतलब वो एक लीडर होने के नाते भी वो अपने अंडर के जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको क्या करता है, बहुत ज्यादा फ्रीडम देता है, जिसके कारण से दे आर गिवन अ फ्री हैंड इन डिसाइडिंग देयर ओन पॉलिसीज, जिसके कारण वो अपने जो ओन पॉलिसीज हैं और मेथड्स है उसको वो खुद ही बनाते हैं। इट कैन बी वेरी यूजफुल, और दिस टाइप का जो लीडरशिप है इट इज़ वेरी यूजफुल वेयर क्रिएटिव आइडियाज़, मतलब जिसमें क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं, पर्सन अपना ओन आइडियाज़ को लेकर के जो भी उसको डेवलप करना है या जो डिज़ाइन करना है या कुछ और है बिजनेस में जो इफेक्टिव है उस बिजनेस के लिए, तो उसमें ये इम्पोर्टेंट होता है। कैन बी हाईली मोटिवेटेड, मतलब इसमें मोटिवेशन ज़्यादा होता है एज पीपल हैव कंट्रोल ओवर देयर working life, and it can make coordination and decision making, but it is time consuming, ये time consuming होता है and lacking in overall direction, मतलब इसमें जो ओवरऑल डायरेक्शन है उसका लैकिंग होगा। क्यों लैकिंग होगा, क्योंकि जो लीडर है वो कैसा है, अपने जो ग्रुप है उसको ऐसे ही छोड़ दिया है कि आप अपने अकॉर्डिंग क्या करो, काम करो। इट रिलाइज ऑन गुड टीम वर्क, जिसके कारण से जो गुड टीम वर्क है वो रिलाई करता है। देन बेस्ड ऑन टास्क वर्सेस पीपल एम्फोसिस, सो इन दिस पीपल एम्फोसिस और टास्क एम्फोसिस, अगर पीपल इसमें पीपल एम्फोसिस में लो टू हाई और टास्क एम्फोसिस में लो टू हाई, सो इन पीपल एम्फोसिस में लो टास्क एंड लो रिलेशनशिप, जिस दैट इज फ्री रेन स्टाइल, मतलब जो टास्क है वो भी ज़्यादा कोई बर्डन नहीं डाला जा रहा है और द रिलेशनशिप विच विल बी ऑल्सो लो, बट इन हाई इन हाई सो हाई रिलेशनशिप और लो टास्क, मतलब इसमें पीपल को ज़्यादा ध्यान में रख करके रिलेशन को ज़्यादा मेंटेन कर रहे हैं एंड द टास्क, मतलब उनका जो काम है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं इसमें, दैट इज हाई पीपल एम्फोसिस, सो इट इज अ सपोर्टिंग स्टाइल। देन नेक्स्ट इज द लो टू हाई टास्क इन टास्क एम्फोसिस, सो ऑटोक्रेटिक स्टाइल में हाई टास्क एंड लो रिलेशनशिप, मतलब जो लीडर है वो बोलेगा कि आपको anyhow you have to complete your task, so in that time the person or the leader which will be not maintaining the relationship with their subordinates, so the relationship which will be low. Then participative style, high task and high relationship, मतलब द टास्क जो रहेगा वो भी कैसा है, हाई है, और जो रिलेशन है वो भी कैसा है, हाई है। सो दोनों जो है वो क्या है, सो इन हाई में हाई रिलेशन और लो टास्क, दैट इज सपोर्टिंग स्टाइल, एंड पार्टिसिपेटिव स्टाइल में हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप। देन बेस्ड ऑन अजम्पशन, इन अजम्पशन मैकजॉस थ्योरी में थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, मतलब द डिस्ट्रस्ट पीपल एंड बिलीव इन क्लोज सुपरविजन एंड टाइट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट्स, मतलब इसमें
जो लीडर होता है वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता है, उसका बिलीव क्या है कि वो क्लोज सुपरविजन करेगा और अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको टाइटली कंट्रोल करके रखता है. But according to theory Y, they are participative, trust subordinates and allow them to participate in decision making. Theory Y के according जो है द लीडर और द सबऑर्डिनेट्स दोनों जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पार्टिसिपेटिव होते हैं. जो लीडर होगा अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन पर ट्रस्ट करता है, उनको अलाउ करता है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके. Then Likert for style, it is consultative. We have already discussed participative. We will already discussed and benevolent, authoritarian or exploitative authoritarian. Authoritative means these all are about the Likert four style. In this, the authoritarian or authoritative means this is also about the autocratic style. Then theories of leadership, there will be trait theory, managerial greed, contingency theory, or leadership behavior theory. So first is the trait theory, focuses on इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल लीडर. मतलब इन ट्रेड थ्योरी में क्या देखते हैं हम, इंडिविजुअल का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं. सो वो इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग जो लीडरशिप है वो क्या होगी, सक्सेसफुल होगी. देन लीडर्स पोसेस अ सेट ऑफ ट्रेट विच मेक देम डिस्टिंक्ट फ्रॉम फॉलोअर्स. मतलब वो जो लीडर है ये वो पोजेस करता है दैट विच मेक द डिस्टिंक्ट फ्रॉम फॉलोअर्स. मतलब उसको उसके कैरेक्टरिस्टिक उसके क्वालिटीज को देख करके उसको बहुत सारे लोग क्या करें, फॉलो करें. देन राल्फ स्टॉकडिल, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर अकम्पलिशमेंट, क्रिएटिविटी. मतलब इसमें क्या क्या होना चाहिए, एक लीडर में डिजायर होना चाहिए, मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए कि उसको जो भी काम मिला है उसको वो क्या करे, कंप्लीट करे. क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंसी, अगर वो क्रिएटिव नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, सो इन दैट टाइम the leader is not able or accomplish their goal. So उस लीडर को क्या होना चाहिए, उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इंटेलिजेंसी होनी चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए और हाई टॉलरेंस होना चाहिए. The next is the behavioral theory. Behavioral theory जो है, it main focus is behavior of actual leader. It determines how various kind of specific leader behavior affect the performance and satisfaction of followers. मतलब ये किस पर डिपेंड करता है, इट विल बी मेन फोकसेस ऑफ द बिहेवियर ऑफ एक्चुअल लीडर. एक लीडर का बिहेवियर कैसा है, सो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक लीडर बिहेवियर इट अफेक्ट. मतलब ये क्या करता है, जो उसके जो फॉलोअर्स हैं उसके परफॉर्मेंस में और जो सेटिस्फेक्शन है उस पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है. जैसे कोई लीडर है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसका जो काम है उसको देख करके हमको क्या होना है, उसका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि उसको देख करके हम क्या हो, सेटिस्फाई हो. क्योंकि उसके जो फॉलोअर्स है, उसका जो परफॉर्मेंस है, उसका वो उन फॉलोअर्स को क्या करना चाहिए, अफेक्ट करना चाहिए, वो उसके काम से सेटिस्फाई होने चाहिए. देन मैनेजरियल ग्रीड, so black and monotone, a graphical representation of a two-dimensional view of leadership style. It will be based on concern for people और concern for production. मतलब इसमें concern for people, इसमें दो चीज़ों पे का concern होता है. एक तो people के लिए concern रहते हैं, दूसरा production पे concern रहता है. Greed identify five basic style of leadership. So this is five basic style of, so this is managerial greed. So in this, concern for production, then concern for people. इसमें भी low high है, so 1.9 middle of road. So इसमें क्या है, अगर हम concern for people रहेंगे तो कंट्री क्लब मीन्स क्या होता है, जैसे जहाँ जा कर के लोग एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंट्री क्लब. देन टीम मीन्स, टीम मैनेजमेंट मीन्स जब सब मिल करके क्या करते हैं, किसी काम को करते हैं. देन इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट. इम्प्रोवाइज्ड मैनेजमेंट मतलब इसमें जो है हमारा जो काम रहेगा वो इम्प्रूव हो रहा है. देन टास्क मैनेजमेंट, सो इन टास्क मैनेजमेंट इट विल बी मीन्स वी हैव टू परफॉर्म आवर टास्क, हमको हमारे टास्क को क्या करना है, कंप्लीट करना है. सो लो टू हाई, इन लो टू हाई यू विल सी दैट इन टास्क मैनेजमेंट मतलब इसका जो स्कोरिंग है इट विल बी 9.1. मतलब हाई हाईली 9 और ये 0.1.
मतलब इसमें क्या हो रहा है, टास्क जो है हमारा वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। बट दिस कंट्री क्लब, मतलब अगर किसी जगह पे हम जा करके एंजॉय कर रहे हैं तो वो किसके अंडर, उसका जो स्कोरिंग है इट विल बी 1.9। देन 5.5 मीन्स इट इज़ अ मिडिल ऑफ रोड, ये मिडिल ऑफ रोड है। और इसके बाद फिर ये कंट्री क्लब, टीम मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, ये सब इसके अंडर में आते हैं, मतलब उसके आगे आते हैं। Then contingency theory. Contingency theory means behavior of leader depends upon characteristic of situational leader is in, मतलब जब हम किसी पर्सन का बिहेवियर देखते हैं एंड इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिचुएशनल लीडर, मतलब किसी सिचुएशन को देख करके जब हम अचानक से जब कोई पर्सन अपना मतलब डिसीजन शो करता है या कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है जिसको देख करके हमको ये फील होता है, उसका बिहेवियर देख करके हमको ये फील होता है कि हाँ ये लीडर बन सकता है या ये एक लीडर है। सो इट कम्स अंडर कंटीजेंसी थ्योरी, मतलब इट डिपेंड अपॉन द कैरेक्टर, मतलब सिचुएशनल लीडर, मतलब किसी ऐसे सिचुएशन में जब कोई एक इंडिविजुअल खड़े होकर के अपना जो भी डिसीजन है उसको दे रहा है या फिर वो उस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, उसके बिहेवियर से हमको लग रहा है कि हाँ ये लीडर बन सकता है। इट कम्स अंडर कंटीजेंसी थ्योरी। इट इम्प्लाइज अंडर व्हाट कंडीशन विल एम्प्लॉय ओरिएंटेड leadership will be effective and under what type of condition production oriented leadership which will be more effective, means it implies under the what condition will एम्प्लॉय, कौन सा कंडीशन जो है वो एम्प्लॉय के लिए कैसा है, ओरिएंटेड है, विच विल बी इफेक्टिव एंड व्हाट टाइप ऑफ कंडीशन, कौन से कंडीशन में क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, वो मोर इफेक्टिव है कि नहीं है, वो ये किस पर डिपेंड करेगा, इट विल बी डिपेंड अपॉन द बिहेवियर। सो दीज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ लीडरशिप स्टाइल। सो the leadership means the person or the individual which will be influence the another person or another individual or group member by their behavior or characteristics. So this is called as leadership, and in leadership style we have discussed about some theories or autocratic leadership, democratic leadership, or laissez-faire style leadership. So thank you, students.